Like this video and subscribe our channel KYC First for latest updates. ठीक है, उसके अंदर हम लोग ने लास्ट टाइम डेफिनेशंस की थी। माइक्रोस्कोपी, माइक्रोग्राफ, मैग्निफिकेशन, रेजोल्यूशन एंड टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स। और टाइप्स के अंदर हम लोग देखी थी कि दो टाइप्स थी। एक थी लाइट माइक्रोस्कोप और दूसरी थी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। डिटेल हमने थोड़ी सी शार्ट करके आपको बता देता हूँ, ताकि जो बच्चे जिन्होंने लास्ट टाइम नहीं किया उनको आसानी हो जाएगी इसको पढ़ने में। यूज ऑफ माइक्रोस्कोप इज कॉल्ड माइक्रोस्कोपी। माइक्रोग्राफ, the photo taken through microscope is called micrograph. Increase in size of object is called magnification, and after the increase in size, clarity of image is called resolution. Light microscope, आ जाओ इधर आ जाओ। The microscope which use the visible light. Visible light is called the light microscope. And the microscope which use the beam of electrons. Which use the beam of electrons to increase the size is called the electron microscope. There are two types of the microscope, electron microscope. One is scanning electron microscope, जिसको हम कहते हैं SEM, and other is TEM, transmission electron microscope. These both microscopes are used to clear the image. SEM is for the deep and clear image, and TEM is for the surface study of the images. So these were the last topics which we had studied in the last
lecture. Now we will move toward the detail in these both microscope. This is the next topic. So this definition, which is called microscopy, is very important, and in the old papers this is derived. The use of the microscope is called the microscopy. Micrograph, the photo which is taken through the microscope, is called the micrograph, and the increase in the size of the object is called the magnification. And the clarity of the image, the clarity of image mean when we increase the size of an object, how much it will be clarified, this is called the resolution. So these two, magnification and resolution, are the basic properties of the microscope. If we are going to purchase a microscope, then these two properties must be identified for a good microscope. Our next, now we are moving toward the light microscope. Light माइक्रोस्कोप, जैसे कि आपको पहले बताया है कि that is the microscope which use the visible light. Visible light mean that is the beam of light which we use, sunlight mostly used. जब भी, for example, if we are going to draw the diagram, in this microscope there are two lenses. One is the ocular lens and other is the objective lens. This is the mirror. That is the stage. And that is the object. This is called ocular lens, eyepiece भी कहते हैं हम लोग. This is called the objective lens. This is called the specimen. This is called the mirror. बीम ऑफ लाइट जब इसके ऊपर आके पड़ती है, इस मिरर के ऊपर, ये इसको रिफ्लेक्ट करता है इसमें से, सुराख में से, और ये ऑब्जेक्ट जो है इसको हम यहाँ पे आके फिक्स करते हैं. ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसको बड़ा करके हमारे व्यूअर की आई में, यानी हमारी अगर ये आँख है, ठीक है ना, उसके अंदर ये हमें क्या करता है, दिखा देता है. दिस इज द लाइट माइक्रोस्कोप. यानी इसके अंदर कितने लेंस होते हैं माइक्रोस्कोप के अंदर? मेड अप ऑफ टू लेंस. कितने लेंस हैं? दो लेंस हैं, जिनमें से एक जो है एनलार्ज करते हैं इमेज को, वन लेंस एनलार्ज द इमेज, जिसको हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्टिव लेंस. और दूसरा लेंस क्या करता है, मैग्नीफाई द इमेज एंड प्रोजेक्ट इनटू द व्यूअर आई, यानी मैग्नीफाई करता है और उसको क्या करता है,
प्रोजेक्ट करता है, फेंकता है किसके अंदर, व्यूअर्स आई के अंदर, यानी हमारी आंख के अंदर उसको फेंकता है। ठीक है, तो एक लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर हमने हमेशा क्या चीजें देखनी है, दो प्रॉपर्टीज देखनी है। एक उसकी देखनी है क्या, मैग्निफिकेशन, magnification of LM light microscope. It will be nearly 1500 times, mean 1500x। ये x जो होता है ये किस प्रकार करता है, गुना को, यानी ये हमारे इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को कितने गुना बड़ा करके दिखाती है, 1500 गुना बड़ा करके दिखाती है। अगर एक इमेज जो है वो 1% है, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि ये इमेज है, इसको ये इतना बड़ा करके दिखा रही है, कौन, LM। तो ये माइक्रोस्कोप की प्रॉपर्टी है विच इज कॉल्ड द मैग्निफिकेशन, यानी ये किसी भी इमेज को कितना बड़ा करके दिखाएगी, उसको हम x से ज़ाहिर करेंगे। अब जब भी हम लोग कोई फोटो लेते हैं, कोई भी पिक्चर लेते हैं, आपने देखा होगा उसके साथ लिखा होता है 1500x, 1200x, 100x, वो उसकी क्या होती है, मैग्निफिकेशन होती है। इवन हम कहते हैं कि 5x होती है, 10x होती है, तो वो जो मल्टीप्लाई करते हैं तो वो इमेज जो होता है वो बड़ा हो जाता है, उसको हम गुना में लेंगे, यानी 1500x होगा तो इसका मतलब 1500 गुना, 1000x होगा तो इसका मतलब क्या होगा, 1000x है। ठीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे इसकी प्रॉपर्टी आ जाती है वो रिजॉल्विंग पावर, रेजोल्यूशन। रिजॉल्विंग पावर इसकी जो है वो कितनी है, 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, और 1 माइक्रोमीटर इज इक्वल टू 1/1000 मिलीमीटर। तो ये 0.2 माइक्रोन मीटर तक किसी भी इमेज को क्या करती है, बड़ा करके दिखा सकती है। और इसका मतलब क्या होगा कि अगर इमेज इससे क्या होगा, स्मॉलर होगा, ठीक है ना, तो ये उसको क्या करेगी, इट विल बी नॉट विजिबल टू अस। और ये जो साइज है, दिस साइज इज द स्मॉलेस्ट साइज ऑफ द बैक्टीरिया, यानी दैट इज द साइज ऑफ बैक्टीरिया, यानी बैक्टीरिया के साइज तक के ऑर्गेनिज्म जो है ये हमें दिखा सकती है। तो दो लेंस हैं, एक इमेज को बड़ा करता है और एक मैग्नीफाई करके क्या करता है, हमारी आंख में फेंकता है। मैग्निफिकेशन इसकी क्या है, 1500x है, और इसकी रेजोल्यूशन कितनी है, 0.2 माइक्रोन मीटर। 0 माइक्रोन मीटर से छोटी अगर होगी तो चीज हमें नजर नहीं आएगी। और 0 माइक्रोन मीटर का मतलब क्या होता है कि हमें आम बैक्टीरिया जो हम जिनके बारे में हमने स्टडी की हुई है उनको हम क्या कर सकते हैं, इसकी मदद से देख सकते हैं। और अगर हमने डीप स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें कौन सी लेनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। कौन सी, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में हमने पढ़ा है अभी कि इसके अंदर क्या होती है, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज होती है। किसी भी स्पेस के अंदर हम दो चीजें रख लेते हैं, दैट इज द एडवांस फॉर्म ऑफ द एडवांस्ड माइक्रोस्कोप है, एडवांस माइक्रोस्कोप है जिसमें ऑब्जेक्ट और लेंस दोनों जो हैं एक वैक्यूम चैम्बर में प्लेस किए जाते हैं, इन विच ऑब्जेक्ट एंड लेंस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम चैम्बर, वैक्यूम
चैम्बर, और इसके ऊपर क्या की जाती है, फिर बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो थ्रो की जाती है, एंड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज पास्ड थ्रू इट, यानी किसके अंदर से, ऑब्जेक्ट के अंदर से। और यही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर रिफ्लेक्शन फॉर्म द इमेज बनाते हैं। यही इमेज बनाते हैं, और ये जो इमेज बनता है, इस इमेज को किसी भी फोटोग्राफिक फिल्म और स्क्रीन पे हम ले सकते हैं। इलेक्ट्रो मैग्नेटिक लेंस इस इमेज को किसी भी स्क्रीन या फोटोग्राफिक फिल्म के जरिए देख सकते हैं। फोटोग्राफिक फिल्म पर इसको हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। अब दो चीजें इसके अंदर हमने देखनी है, एक तो इसकी मैग्निफिकेशन, और टाइल लगा देते हैं। मैग्निफिकेशन, और दूसरी हमने क्या देखनी है, इसकी रेजोल्यूशन। दो चीजें हैं, ये हमने पहले भी डिस्कस किया कि हमने कोई भी माइक्रोस्कोप लेनी है तो उसके अंदर एक तो उसकी मैग्निफिकेशन देखनी है और दूसरी उसकी क्या देखनी है, रेजोल्यूशन। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जो मैग्निफिकेशन है वो 250,000 माइक्रोस्कोप के, जबकि जब इसकी हम अगर रेजोल्यूशन की बात करते हैं तो ये 0.2 नैनोमीटर है, और 1 नैनोमीटर जो है 1 नैनोमीटर इज इक्वल टू 1/1 लाख नैनोमीटर, 10 लाख नैनोमीटर मिलीमीटर। इतना बड़ा करके ये इमेज को दिखा सकती है, ठीक है। अब किसी भी माइक्रोस्कोप की मदद से, किसकी मदद से, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की मदद से हम एटम्स, इंडिविजुअल सेल्स, डीएनए और प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स को स्टडी कर सकते हैं। इसकी मदद से इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। अब इसकी
ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन। अब ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसमिटेड थ्रू स्पेसिमन से गुजरते हैं एंड यूज टू स्टडी इंटरनल स्ट्रक्चर। इससे हम इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी करते हैं। जबकि अगर हम स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात करेंगे तो इससे हम एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ इमेज जो है किसी भी चीज का दे सकते हैं। मेटल कोटेड ऑब्जेक्ट होगा और उसकी हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ सरफेस स्टडी कर सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि अगर हमने डीप स्टडी करनी है तो उसके लिए हमें ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए, और अगर सिर्फ सरफेस स्टडी का मुताला करना है तो हमें क्या चीज चाहिए, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो हमने दो चीजें पढ़ी हैं आज, लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। इनकी डिटेल, इनकी सारी वैल्यूज जो है, इनको स्टडी करने के लिए आप इसको पढ़ेंगे। कल इनके ऊपर क्या होगी, क्वेश्चन होगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा हिस्ट्री ऑफ द सेल थ्योरी, वो हम कल करेंगे। इससे मतलब किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें। जी बेटा, किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो कर